So tell the answer of first question. Larynx is modified portion of option 1 pharynx, trachea, bronchus, lungs. Pharynx. Whatever other mic off, kindly off your mic. Yes, हाँ बोलिए. Pharynx. Trachea. Every student have to participate in that discussion and the solving of questions. Clear? Yes. That is better कि आप लोग चैट में बताइए. So what will be the answer? बोलिए. Larynx is हाँ चैट में बताना है. Only two answer. Rest. हाँ जी. So its answer will be trachea. Is it clear? Yes. Disha, why it should be pharynx? सर गलती से सेट किया. हाँ उसका ध्यान रखना है. Next question. Cartilaginous ring in trachea are incomplete at which surface? ऑप्शन आपके सामने है. Other? Okay. Rest? What about rest? Tell me. Try to solve the question as fast as you can, as we have to solve 2 chapters today, or more than 2 chapters. So its answer will be, as we have learned that the cartilaginous rings are incomplete from their dorsal side. Yes or no? Ventral side they are complete, they are C-shaped. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. And they are incomplete towards dorsal side, towards esophagus. Am I right? So its answer will be dorsal. Next question. Wall of alveoli is composed of सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. किसी का 1 है. नेक्स्ट बोलते चलिए. नेक्स्ट. Every student has to take part in the discussion. Yes. बस इतने आंसर है. So in the lecture class we have discussed about the simple squamous epithelium. The alveoli walls are composed of simple squamous epithelium. Yes or no? So its answer will be Yes. Yes sir. हाँ. एक बात और हम लोगों ने बात की है यहाँ पर कि जो alveoli के walls होते हैं they are single celled thick. मतलब एक सेल जैसा थिकनेस होती है. एक्चुअली में लेयर के थिन होती है, थिक होती है थिन, लेकिन सिंगल सेल थिक होती है, मतलब एक सेल के साइज के जैसा. अरे हाँ जी. हाँ सर. क्वेश्चन नंबर 4. The structure which prevent the entry of food into the respiratory tract is next.
Hello. What about others? I'm again saying every student has to take part in the session. So its answer will be epiglottis. The gullet, as you know, जो गलेट आपके पास होती है, जो आपके पास गलेट होती है मतलब जो कि फूड पाइप होती है, सुनो, फूड पाइप के जस्ट एंटीरियर साइड में there is another tube that is a windpipe, and the opening of windpipe is known as glottis, and that is covered by epi means ऊपर, glottis को कवर करने वाला layer, that is membranous layer, cartilaginous layer, that is the epiglottis. Is it clear to everyone? Yes. Next, in which part of lungs gaseous exchange takes place in human? Question number 5. Question number 5. Tanashri, check your answer. Tanashri, check your answer. What about others? Next. पार्वती, आपका आंसर क्या है? सर भेजा करें। So its answer will be, tell me. Alveolar Simple. If you don't know the answer, then how can we analyze the answer? How can you know the answer? ट्रेकिया, क्या ट्रेकिया में गैस की एक्सचेंज आपने देखा है? अरे ट्रेकिया तो एक पाथ था ना जिसके थ्रू वो ट्रेवल करता है, यस और नो? हाँ, अल्वेओलर डक्ट थोड़ा सा तो समझ में आता है, इसको भी होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट इसमें भी आपका ट्रेकिया है, नेक्स्ट इसमें भी आपका ट्रेकिया है, तो जितने भी ट्रेकिया वाले पार्ट हो सबके सब डिसमिस हो जाएंगे, यस और नो? तो बचेगा आपके पास क्या? एक तो अल्वेओलर डक्ट, और आपको तो अल्वेओलाई मालूम ही है, जो एक्चुअल गैस का एक्सचेंज कहां पर होती है? अल्वेओलाई में ही तो होती है, यस और नो? Yes. 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 Question number 6. Respiratory organ of insects are. ये मैंने सबका लिस्ट आपको लिखा है, तो बताइए। Respiratory organ of insects are. निष्का, check your answer. झील, check your answer. भारती शर्मा, check your answer. कैसे कैसे आप लोग ऐसे आंसर दोगे, कैसे बताओ? हाँ, कुछ बच्चों ने आंसर सही दिया है, ऐसा लगता है आप लोग अपने भेजे को लंच के टाइम में उसको एनर्जी नहीं दी है, शायद ऐसे आप लोग ऐसे आंसर दे रहे हो। अरे लंग्स किस सेंस में होता है? स्किन, ओके। अरे ऑप्शन में ही नहीं है भाई। अरे सॉरी सर। बुक लंग्स है, जनरल बॉडी सरफेस है, ट्रेकियल ट्यूब्स है, बताइए। भारती शर्मा, लंग्स के इंसेक्ट में कहां से आएगा? बोलो। इसके लिए हम लोगों ने ट्रेकियल ट्यूब्स पढ़ा था ना, कि दीज आर द नेटवर्क ऑफ ट्यूब थ्रू व्हिच गैस का एक्सचेंज होती है, सर नो? Yes. हेलो। हाँ, तो इट्स आंसर विल बी ट्रेकियल ट्यूब्स। मैक्सिमम बच्चे का आंसर सही आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज भी गलत कर, इसका मतलब दे हैव नॉट रिवाइज्ड द notes as well as NCERT. They have not gone through all those points that I have already asked to do. Yes or no? Next question. तो इसका आंसर क्या होगा? That is the tracheal tube through which the insects are getting in which through that is the respiratory organ through which the gases exchange takes place. Yes or no? Question number 7. In human, lungs are divided into lobes. कितने lobes में और कैसे कैसे बताइए? Yes.
नेक्स्ट नेक्स्ट एनिमल लेफ्ट। तो बेसिकली जब हम लोगों ने लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, बेसिकली ये टू इन्वर्टेड बी शेप्ड टाइप कुछ लंग्स थे आपके पास, यस और नो। जो ट्रेकिया था, ट्रेकिया फाइनली टर्मिनल पार्ट पे आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, जिसको हम लोगों ने बोला था प्राइमरी ब्रोंक्यूल। फिर वहां से लंग्स का हम लोगों ने अलग अलग पार्ट में बांट किया था, यस और नो। एक के पास 3 लोग थे, एक के पास 2 लोग थे। एक्चुअल में जो आपके पास राइट वाला था, जबकि मैं आपको लेफ्ट में दिखा था, कौन था? राइट वाला। इसलिए जो 3 राइट लोग होंगे और 2 लेफ्ट लोग होंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Eric invite cartilage in larynx are which type? Elastic, hyaline, calcified, all of these? जल्दी बताइए। नेक्स्ट 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 व्हाट अबाउट नेक्स्ट? आर्यस, आपके साथ ये आंसर क्यों होगा? आप मुझे इसको जस्टिफाई कीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट एनीवन लेफ्ट? ऑल ऑफ दिस नहीं होगा ना बेटा? डू यू हैव रिवाइज द नोट्स? हेलो? Yes, sir. But in notes it is not written as all of these. Okay. Yes or no? That will be hyaline cartilage. Yes or no? Okay, sir. Yes. Is it clear to everyone? Yes. If expiratory reserve volume is 1100 ml, residual volume is 1200, the end tidal volume is 500 ml, then what shall be the functional residual capacity? मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए कि रेसिडुअल मतलब वॉल्यूम्स क्या होती है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होती है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज क्या होती है। यस और नो? आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया था। हाँ, sir. Do it fast. Do it fast. बस इतने बच्चे हैं, बाकी सब किधर है? So I think most of the students told that their answer is 23. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जाए। बेसिकली these are the extra information that only to confuse you. Yes or no? जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? टाइडल वॉल्यूम दे रखा है। इसकी यहाँ पे कोई जरूरत है क्या? यस? नहीं, sir. हाँ, तो बेसिकली क्या है, जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होती है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ द लंग्स वेयर इट इंक्लूड्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एज वेल एज रेसिडुअल वॉल्यूम। दैट जब दोनों का सम अप करेंगे यू विल गेट 2300 ml. यस और नो? सो इट्स आंसर विल बी 3. इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 2. एयर filled in dead space is dash. ये आपको अच्छे से इसका कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि इसको बोलते ऐसा क्यों है, साथ ही साथ में इसकी वैल्यू। और नीट में कई बार ये सवाल पूछा गया, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉइंट्स। यस और नो? नेक्स्ट, और एमएल को हम लोग क्या बोलते हैं? सीसी बोलते हैं। एमएल को क्या बोलते हैं? सीसी बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। यस और नो? इसका क्या मतलब है? मान लो एक बॉक्स है आपके पास, एक क्यूब है जिनका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जिसका मतलब साइड कहा जाए, तो साइड सेम होता है।
सबका साइड कितना है 1 cm है, अरे बोलो ना 1 cm है। जब इसका आप वॉल्यूम निकालेंगे दैट विल बिकम 1 cm क्यूब, यस और नो। और इसका मतलब ये हुआ कि द वॉल्यूम occupied by 1 cm cube that will be equal to 1 ml, yes or no? That's why we Yes, say ml equal to cc, that you have already read in basic math class of physics lecture, yes or no? हाँ, तो उसका what will be the answer? So that is the 150 cc or we can say 150 ml. That first option will be the correct, yes or no? Question number 3. Very high number of alveoli present in the lung that is meant for more space for increasing volume of inspired air, more area of diffusion, making the organ spongy, increasing nerve supply. जल्दी नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बताइए। तनाश्री take your answer. तनाश्री take your answer. What about others? Arya take your answer. Parvati, what is the answer? relaxation of diaphragm and intercostal muscles. Question number 3, not 4. Oh, more area for diffusion. अरे ये तो मैंने पढ़ा था लेक्चर में पढ़ा था ना कि Space. जितना जितना मोर स्पेस, ये कौन है बेटा, हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि देखो उसका मोर वॉल्यूम होने के लिए तो लंग्स का एक्सपेंशन हो रहा था ना, यस और नो? इंटरकोस्टल मसल मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब उसको लंग्स को एक केस को बाहर एक्सपेंड करवा रहा था तभी तो ये इसकी वजह से लंग वॉल्यूम बढ़ रहा था। ये थोड़ा ना कि ज्यादा अल्वेलाई किस लिए है, ज्यादा अल्वेलाई इसलिए है ताकि ज्यादा से ज्यादा डिफ्यूजन हो सके और उसके लिए उतना उसको एरिया मिल सके। अरे हाँ कि ना, अरे बोलो, कोई दिक्कत है? हाँ तो क्या होगा, द मोर एरिया ऑफ डिफ्यूजन, दैट 2 will be the answer. Option number 2 is correct. Question number 4. Expiration involves. Expiration involves. Is it active process or passive process? Passive. Passive process. Then what happening during the expiration process? Yes or no? Tell me. Next, 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 next. Anyone left? Jane, what is your answer? Jane, Yes, sir. what is the answer? Second option. Second option. Very good. बहुत बढ़िया। नहीं मालूम है? नहीं सर। आपने पढ़ाई नहीं है, मतलब घूमते घूमते जाएंगे तो पढ़ाई थोड़ा ना हो पाए। अरे एक्सपायरेशन में किसी चीज का कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा? The first option. फर्स्ट नहीं हो तो सेकंड होगा, सेकंड नहीं तो फर्स्ट होगा। नॉट द करेक्ट वे टू आंसर द क्वेश्चन, यस और नो? तो ड्यूरिंग, अरे मैंने इसका पूरा मैकेनिज्म बताया था। पार्वती, कैन यू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म हाउ एक्सपेरिमेंट टेक्स प्लेस? यस, हेलो, Yes, sir. पार्वती बताइए। सर, थोड़ा वॉल्यूम डिक्रीज होता है क्योंकि इज द करेक्ट आंसर।
So relaxation of diaphragm as well as intercostal muscles. Is it clear? Next है abdominal breathing. That refers to, yes, tell me the answer. Abdominal breathing refers to normal, slow, fast, forceful breathing. Tell me. What about that? Kakade, what is your answer? Normal breathing. Normal breathing. So ये अच्छा. Generally जो women हुआ करती है during their pregnancy, what kind of breathing they are taking? Who will tell the answer? Sir, fast. अरे ऑप्शन में नहीं है वो. मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा आपसे. That is not displayed in the screen. During the pregnancy, what kind of respiration are going on in a pregnant lady? Yes. उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था. Tell me the answer. कोई ऐसा है जो मुझे इसका आंसर दे सकता है? Slow and fast. नहीं, it's shallow and fast. Shallow and fast. Wow. मैंने उस ब्रीदिंग का नाम लिखाया था, बताया था उस ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं. अरे ब्रीदिंग दो टाइप का होता है, चेस्ट ब्रीदिंग और एब्डोमिनल ब्रीदिंग. But in the case of what I can say, in a pregnant lady, what kind of breathing is involved? Chest breathing. All you are to do. Breath breathing. Yes or no? यहाँ पर क्या होगा? It is a normal breathing. Next question. Residual volume dash lesser than tidal volume, greater than inspiratory volume, greater than vital capacity, greater than tidal volume. Do it fast. अरे बोलो. टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है? 500 ml. और रेसिडुअल की 1.1 1000. to 1.2 liters. So most of the students have answered. किसी का आंसर क्या है? What does it mean? क्या है? What is क्या है? भारती शर्मा, चलो बात नहीं. So its answer will be greater than tidal volume. Is it clear to everyone? अरे हाँ जी. Yes, sir. Moving to next. Question number 7. Vital capacity of lungs is. Vital capacity of lungs is. बोलिए, इसमें क्या क्या हम लोग इंक्लूड करते हैं? Next. सिर्फ आप ऑप्शन दे दिया कीजिए ना, फिर टाइम काहे के लिए आप वेस्ट करेंगे, फिर आपका आंसर पीछे आएगा ना, इससे कि रेपिटेशन में कुछ फर्क पड़ेगा. सिंपल सा 1 2 3 4 में होता है, 1 2 3 आगे पता नहीं मुझे. सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 मैच द कॉलम. और ये सवाल लीड में पूछा गया है, और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का कंफर्म. नीट के 22 आप नहीं दोगे, 23 में 23 देने वाले हो ना. 2 क्वेश्चन कंफर्म, मतलब 4 से 8 नंबर.
समझ रहे क्या? बताइए। मतलब जो टॉपिक है आपके पास, टॉपिक इज रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एज वेल एज रिस्पायरेटरी कैपेसिटी। छोटी सी टॉपिक है, इससे एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, कम से कम पूछेगा। इसके एप्लीकेशन बेस पे, इसके वैल्यूज को लेकर के, डेटा को लेकर सवाल कुछ भी पूछेगा, या मैच द फॉलोइंग पूछते हैं। पता है बेस्ड आंसर क्या होता है? मतलब बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है कि एक क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट पूछ ले, लाइक मैच द फॉलोइंग। यस और नो? हाँ हाँ। तो एक बच्चे का आया है, अरे ये क्या है, 2 3 1 2 5, ये सब क्या है? डायरेक्ट आंसर दो, डायरेक्ट आंसर दो। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था। हाँ जी। हाँ, तो नेक्स्ट बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? बोलो। 500 ml. 500। ठीक है। वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? अरे बोलो। 4,300. 4,800. हाँ, उसका रेंज कुछ ना कुछ तो होगा, दैट इज दिस काइंड ऑफ थिंग। यस और नो? Yes, sir. Yes. तो इसको मैंने वाइटल कैपेसिटी पे ऐसे मैच करा दिया। और क्या रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है? 1002 1200 क्या? ml. अरे बोलो। हाँ सर, 1,200. 1200। तो मतलब अगर हम इन तीनों पॉइंट को देख लें तो बाकी हमें करने की जरूरत पड़ेगी क्या? तो रेसिडुअल का क्या है, 5 है, तो डी का 5 इधर हो गया। नेक्स्ट आपके पास वाइटल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी ई का क्या है, 4 है, तो ये हो गया। ऐसा कहीं और भी है क्या? इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है आपके पास, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अरे हाँ जी। नेक्स्ट है आपके पास ए का 3। ए का 3 किसमें है? एक इसमें है, एक इसमें है, और एक इसमें है। हर बात समझ रहे हो क्या? इसका मतलब पहला और लास्ट पहले हट गया, इसका मतलब मुझे और भी देखना पड़ेगा। अच्छा, देखना क्या पड़ेगा हमें? सी वाला देखना है। सी में क्या है? एक में 2 है, एक में 4 है। सी क्या है आपके पास? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है? कम होगी या ज्यादा होगी बताइए? 1,000. तो कम होनी चाहिए, क्योंकि जो आपके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से कम होता है क्या? Yes, sir. हाँ, जब कम होता है तो कम में आपके पास सिर्फ ये बचा है, तो दैट इज 2। तो आपका सी का 2 आंसर होगा, मतलब दैट इज द सेकंड ऑप्शन। क्या ये सर बात थर्ड समझ गए? ऑप्शन में 2 बार 4 दिया है। कहाँ पर? हाँ, तो वैसे ही खत्म हो गया वो। हाँ ये तो वैसे ही खत्म हो गया, मतलब आई थिंक स्टूडेंट होगा वो। यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, 1 2 2 होना चाहिए, 2 नहीं, कहीं और पे मतलब कुछ होना चाहिए सेम। ऐसा ऑप्शन नहीं देगा फिर। अच्छा, मिसफिट हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे का कोई ऑप्शन नहीं देगा जहाँ पर एक ही में 2। हाँ, जैसा दे भी सकता है, तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट है, आपको कम मैच करना पड़ेगा। यस और नो? और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपको बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या बोला मैंने? 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बायोलॉजी में, नीट के 23 में। अराउंड 45 जूलॉजी और अराउंड 45 बॉटनी। ये 100% कहीं नहीं है कि आपको आधा आधा जूलॉजी मिलेगा, आधा बॉटनी मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ में से इन 90 में से, मतलब 90 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट आपके पास अवेलेबल है, बट इन 90 क्वेश्चन को जो बच्चे 35 40 45 50 मिनट्स के अंदर करते हैं, सिलेक्शन उसी का होता है। इज क्लियर? सर क्या बात करते हो? हाँ बेटा, मैं सही बात कर रहा हूँ, ऐसा ही होता है। बाकी सर, बाकी टाइम क्या करना है? क्या हम लोग पार्टी करेंगे? नहीं बेटा, पार्टी नहीं करेंगे। जो फिजिक्स आपके पास, उसको आप लोग ज्यादा टाइम लगा के सॉल्व करते हो, उसमें आप टाइम नहीं, और ज्यादा से ज्यादा आप गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और आपसे छूटे ना। अरे हाँ जी। और सर ये 90 क्वेश्चन को 35 मिनट में कैसे करोगे आप? कैसे करोगे बेटा, बताइए कैसे? हाउ यू विल सॉल्व these 90 क्वेश्चन इन lesser टाइम? हाउ? प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपने पढ़ा ना, लिमिट टेंड्स टू 0, लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी।
अपर लिमिट लोअर लिमिट पढ़ा तो होगा ना यार? अरे नहीं पढ़ा क्या? नहीं अरे बेसिक मैथ में पढ़ा होगा ना लिमिट के बारे में, हाँ सर। डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा ना, इंटीग्रेशन पढ़ा होगा ना? ना मैं पढ़ा हूँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं ना? हाँ नहीं, तो हाँ जैसे हाँ जैसे कि आपने लिमिट टेंड्स टू ऐसे करके जीरो पढ़ा होगा, कहीं पे इंफिनिटी पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिस टेंड्स टू इंफिनिटी, जिनका प्रैक्टिस टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब इतने बार प्रैक्टिस कर ले कि वो सारे क्वेश्चन ऑप्शन के साथ आपके टिप्स पे हो, आपके लिप्स पे हो, मतलब क्वेश्चन खत्म होते ही आपको आंसर मिलना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन था ना आपके पास, ये क्वेश्चन देखते ही क्योंकि डाटा एज सब कुछ एज है, आपको पहले ही मालूम होना चाहिए कि सर इसका आंसर आपको आगे देखना है। अरे हाँ जी, हाँ तो ये इन 90 क्वेश्चन को कम से कम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 या 50 मिनट के अंदर ही अंदर करना है, इसके आगे डालो आप। इसके लिए आपको प्रैक्टिस को करना पड़ेगा, रिवाइज को करना पड़ेगा, बाकी वो काम आपको होता नहीं है, सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। यस यस ऑक्सीजन hemoglobin dissociation curve will shift to right side on degrees of acidity, temperature, carbon dioxide concentration, pH. What about rest? काकड़े आपका आंसर क्या है? बोलिए। अच्छा, पहला ऑप्शन और सेकंड फोर्थ ऑप्शन में क्या कुछ सिमिलरिटी है, डिसिमिलरिटी है? यस सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी। सिमिलरिटी क्या है? पीएच डिक्रीज होगा तो एसिडिटी बढ़ेगा। सिमिलरिटी क्या है? इसमें लिखा है कि इस कंडीशन के लिए डिक्रीज ऑफ क्या होना चाहिए, पीएच होना चाहिए या फिर एसिडिटी होना चाहिए? पीएच। अरे एसिडिटी डिक्रीज का मतलब क्या है कि पीएच बढ़ेगा। अरे हाँ जी, हाँ सर। समझ रहे हो ना? एसिडिटी डिक्रीज का मतलब पीएच बढ़ेगा, मतलब बेस की तरफ जाएगा वो। इसीलिए क्या है कि पीएच घटने का मतलब क्या है, एसिडिटी बढ़ रही है। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता है कि एसिडिटी इंक्रीज इन एसिडिटी, देन दिस विल आल्सो बी द करेक्ट, यस और नो? इसका आंसर क्या होगा? पीएच, यस और नो? so decrease in pH will shift the oxygen hemoglobin dissociation curve towards right side, yes or no? अगला क्वेश्चन, body tissue obtain oxygen from oxygen hemoglobin because of its dissociation in tissue caused by dash 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 dash। जल्दी जल्दी बताइए। काकड़े टेक योर आंसर, काकड़े टेक योर आंसर। श्रावणी टेक योर आंसर। आपने चेंज क्यों किया, मुझे इसका एक्सप्लेन दीजिए। काकड़े सर टिश्यूज में ऑक्सीजन का कम कंसंट्रेशन होगा और CO2 का ज़्यादा। तो फिर आपने 4 से 1 पे कैसे आ गए? इसका मतलब पहला भी 4 भी सही है। अरे हाँ जी, हाँ सर, पर फर्स्ट करेक्ट होगा। पर फर्स्ट करेक्ट होगा। चलो कोई नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। देखो इन टिश्यू वेयर देयर इज CO2 की फॉर्मेशन होती है आफ्टर द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, यस और नो? सो इन बॉडी टिश्यू जो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन बना हुआ है,
जो वो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इनका डिस्कशन जब होगा ना, जब उसको बाइंडिंग के लिए कोई चीज है जो फैक्टर जो उसका फेवर करने वाली चीज वो परसेंट नहीं रहेगी। अरे हाँ जी, तो जो उसका फेवर करने वाली चीज नहीं रहेगी तो अपने आप डिस्कशन हो जाएगा। सो लो ऑक्सीजन ऑफ, एक तो आपका ये अलग अलग है कि लो यहाँ पे है हाई CO2 कंसंट्रेशन, ये तो होना चाहिए, लो CO2 कंसंट्रेशन ये भी तो होना, मतलब लो CO2 कंसंट्रेशन मतलब वो फेवर करता है, हाई एक इधर है एक यहाँ पर ऑप्शन है, तो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन तो लो होना चाहिए पर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, मतलब पार्शियल प्रेशर इन सबका, इसका कम इसका ज्यादा, तभी तो इससे डिसोसिएट हो पाएगा। अरे हाँ जी, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अल्वेलाई दैट, अच्छा ये भी सवाल इसमें पूछा गया है, एटमॉस्फेरिक एयर टिश्यू विल बी, ये तीन अलग अलग है, बताइए। ओके नेक्स्ट, ये वो क्वेश्चन है दैट यू हैव टू सॉल्व इन नैनो सेकंड, कैसे मैं बताऊंगा, निष्का टेक योर आंसर, निष्का टेक योर आंसर। व्हाई यू हैव चेंज? सर मैं कंफ्यूज हो गई थी। अभी क्लियर है? हाँ सर। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? तो मैं आपको बताता हूँ कि जो 90 क्वेश्चन वाले, तो 90 क्वेश्चन को 50 मानो 40 मिनट, ये कैसे करता है। अरे सिंपल से क्या पूछा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अल्वेओलाई, एटमॉस्फेरिक एयर एंड टिश्यू। अरे मेरे में जो बताया पहले यहीं पे जाएगा, अरे बीच में एटमॉस्फेरिक एयर ना, और एटमॉस्फेरिक में परसेंट कितनी होती है, 0.3 होती है। अरे हाँ जी, अरे बोलो ना, कंफर्म करने के लिए अल्वेओलाई में कम होना चाहिए, टिश्यू में ज्यादा होना चाहिए, तभी तो इससे इधर जाएगा, हाँ कि ना। हाँ सर। तो इससे यहाँ जाएगा तो इससे अब बाहर चला जाएगा। तो ऐसे मतलब कितना, मतलब मेरे ख्याल से 1 सेकंड में मेरे आंसर आपको मिल जाना, 1 सेकंड। अरे बाकी 59 सेकंड बच गया आपका। अरे बात समझ आ रहा है? तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 4, वन हीमोग्लोबिन कैरीज हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ CO2? इसको आप बगैर टाइप करके इसका आंसर दे सकते हो, मतलब कुछ क्वेश्चन हम वर्बली करते हैं बगैर सोच के, समझ में आ रहा है? तो ये कुछ होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी। इज इट क्लियर? अब ये भी इतने बार हो गया है, इसमें डाउट कुछ होना ही नहीं चाहिए। अरे सर आंख बंद करके पहला ऑप्शन तुक्का है, मतलब पहला ऑप्शन तो कंफर्म है। अरे सर एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, अरे 2 होने से रहा, 6 होने से रहा, 8 होने से रहा। तो 2 अलग अलग कहाँ पे होती है, हिली एरिया, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि एक हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, ताकि उसका जो ऑक्सीजन के लेवल है वो अपनी बॉडी में मेंटेन रहे, कि बगैर ऑक्सीजन तो रह नहीं पाएगा कि हाँ, अरे बोलो ना। सो फर्स्ट विल द करेक्ट ऑप्शन, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 5, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व डैश हाइपरबोलिक सिग्मोइड स्टेट कांस्टेंट, इसको आप डायरेक्ट वर्बली बोल सकते हैं। Sigmoid. हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप 1 सेकंड में आपको आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप टाइम ले सकते हो, समझ में आ रहा है क्या? तो ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 4 सेकंड में आना चाहिए। अरे बाकी टाइम बच गया ना आपका यार, अरे बोलो ना। तो ऐसे ही 90 क्वेश्चन को 40 या 45 मिनट में सॉल्व करते हैं, 35 मिनट में सॉल्व करते हैं। अरे हाँ जी, जो आप नीट के टॉपर से बात करोगे, जो लोग एम्स में आ जाते, दिल्ली वाले एम्स में आते हैं या मौलाना MAMC में जाते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, तो वो आपको बताएंगे बेटा हम लोग ऐसे सॉल्व क्या करते हैं। समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? तो दैट सिग्मॉइड एस ड्यू, सिग्मॉइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका शेप ऐसा होता है, एस शेप होता है, S हाँ कि ना? shape.
इतना क्लियर है सबको बोलो। CO2 is transported mainly as कार्ब-हेमोग्लोबिन, ऑक्सीहेमोग्लोबिन, ऑक्सीहेमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट। ये भी क्वेश्चन आप वर्बली कर सकते हैं। bicarbonate. Every student has take part in the discussion। जो बाइकार्बोनेट। नहीं कर, Bicarbonate. जिसका जो नहीं करेगा नुकसान उसका है। तो आंसर क्या होगा इसका? बाइकार्बोनेट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7। Every 100 ml of deoxygenated blood delivers around dash CO2 to alveoli। Every 100 ml of 4 ml। डिस्कस आपस में कर लो क्या होना चाहिए। 4 ml. 4 ml. 4 ml. पार्वती आपने पहले 5 क्यों बोले? Sir, 4 ml. ओके, सबका आंसर यही है क्या? अरे बोलो ना, अरे हेलो। हाँ हाँ, एक्चुअल में करना कैसे चाहिए इसको? अच्छा, हम लोग इसको लेकर के ऑक्सीजन की बात करते हैं। इससे अगला प्रश्न देखिए, हाउ मच ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई टू टिश्यू इन वन सर्कुलेशन इन नॉर्मल कंडीशन? 25। 25%। यहाँ पे 4 भी दे रखे हैं, ध्यान रहे। यहाँ पे 20 भी दे रखे हैं, ध्यान रहे। समझ में आ रहा है ना? तो परसेंट की बात है तो 25%। करना चाहिए 20 ml, लेकिन करेगा कितना? 5 ml। अरे हाँ जी, और इसमें 4 ml। इज इट क्लियर? Yes. yes sir. कोई दिक्कत? नहीं sir. The impulse for voluntary muscles for the force breathing starts in। ये तो अच्छा क्वेश्चन, आप टाइम ले सकते हैं। टेक योर टाइम एंड आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज द सेरेबरम या सेरेबलम? बोलो Cerebrum. क्वेश्चन नंबर 2। द respiratory center of brain is stimulated by। respiratory center of brain is stimulated by। इसमें आप टाइम ले सकते हैं। जल्दी। What about next? क्या इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अपने पास एक ही बच्चे हैं? हेलो, व्हाट अबाउट अदर? अरे क्वेश्चन नंबर 2। अब कहाँ चले बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पूछो। मैंने पहले भी क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, आज भी कर रहा हूँ।
हाँ, बेसिकली इट इज द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द आर्टिफिशियल फ्लूइड। अरे तभी तो स्टिमुलेट होगा ना, यस और नो? जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन पे, दैट इज स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीजन कंटेंट आर्टिफिशियल ब्लड में, तो ठीक है। ऑक्सीजन कंटेंट है वेनस ब्लड में, तो भी ठीक है। अरे हाँ जी, CO2 कंटेंट है वेनस ब्लड में, तो भी ठीक है। लेकिन बात करेंगे हम किसकी, बात करेंगे किसकी, बताइए? कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट प्योर ब्लड के केस में बढ़ जाए, मतलब आर्टरी क्या करता है, प्योर ब्लड कैरी करता है, वहां पर अगर CO2 बढ़ जाए तो उसका क्या होना चाहिए, जो रिस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन में, दैट विल बी स्टिमुलेटेड, और क्या करेगा, बाहर से ऑक्सीजन लाने के लिए, और मतलब क्या हुक्म देगा, और दिस काइंड ऑफ फोर्सफुल ब्रीथिंग वगैरह किया जाएगा। ऐसा नो? अरे बोलो। तो करेक्ट आंसर इज द carbon dioxide content in the arterial blood. Next question, question number 3. Respiratory rhythm center is present in, इसके लिए आप बगैर टाइम लेके बोल सकते हैं, जो कि 1-2 सेकंड में बताने वाला आंसर है। पार्वती, चेक योर आंसर। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। अरे हाँ जी, Yes. क्वेश्चन नंबर 4, हिक्कप, मतलब जिसको हम हिचकी बोलते हैं, इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ, बोलो डायफ्राम। ये बगैर 1-2 सेकंड में आंसर करने वाला क्वेश्चन है, जल्दी बोलिए, वर्बली बोल सकते हैं। Diaphragm. डायफ्राम। डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, एक बोन है क्या ये? व्हाट इज डायफ्राम? यस, डायफ्राम क्या है? एक मेम्ब्रेनस लेयर है जो कि चेस्ट कैविटी को, चेस्ट कंटेंट को एब्डोमिनल कंटेंट से सेपरेट रखता है। अरे हाँ जी, उसके बीच में एक छोटी सी होल होती है जिनके अंदर से दैट एलिमेंट्री कैनाल पियर्स थ्रू इट। अरे हाँ जी, और आप पूछ सकते हो कि सर ये दोनों को सेपरेट करता है तो फिर एलिमेंट्री कैनाल पास कैसे होती है? तो बीच में एक छेद होती है सेंटर पे, उसे छेद से पियर्स करता हुआ ये बाहर निकलता है, मतलब नीचे की तरफ डिसेंड डाउन होती है। इज इट क्लियर? So diaphragm is the correct option. Yes or no? Third is the correct option. Question number 5. Pneumotactic center is present on. Pneumotactic center is present on pons, medulla, cerebellum, cerebellum. इसको 1-2 सेकंड में आंसर करने वाला क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। Pons. पॉन्स। पक्का? Okay, the answer is the pons. Next question. Question number 6. Asthma is a respiratory disease caused due to infection of trachea, infection of lungs, bleeding into the pleural cavity, spasm in bronchial muscles. Yes. ये भी 1-2 सेकंड वाला क्वेश्चन है, क्या बताइए? नेक्स्ट, भारती शर्मा चेक योर आंसर। भारती शर्मा चेक योर आंसर। यस सर। काकरे चेक योर आंसर। काकरे चेक योर आंसर। मतलब सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है, आप गलत कर रहे हो तो बताओ कैसे होता है। इन्फेक्शन ऑफ लंग के लिए अलग बीमारी होती है, इन्फेक्शन ऑफ ट्रेक के लिए अलग बीमारी होती है, ब्लीडिंग ऑफ फ्लूइड कैविटी के लिए अलग बीमारी होती है, एस्टमेशन होता है। जो ब्रोंकियल मसल्स है उसमें क्या होती है, स्पेज़म आती है, क्या होने लगती है, जिनकी वजह से ये सांस लेने में प्रॉब्लम करता है कि ना, और ऐसे लोग ज्यादा खर्राटे लेते हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा कोई जनरेट स्टार्ट हो गया है। आई थिंक आप लोगों को सबको इसके बारे में अच्छे से मालूम होगा। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ये? अरे करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर। Spasm in bronchial. हाँ,
उसमें कुछ एक्स्ट्रा बोन्स वगैरह एस्थमा कंडीशन में बढ़ जाती है। हाँ जी, और कुछ नाक का शेप से मालूम चलेगा कि इसको एस्थमा का कोई सिम्टम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? When CO2 concentration in blood increases, breathing becomes, ये भी कम टाइम वाला क्वेश्चन है। 3 what about others? अरे क्या हो, बोलो ना। ब्रीदिंग फास्टर होगा स्लोअर होगा? Faster. Faster. तो जैसा आप कहते हैं मैं भी वैसा आंसर करता हूँ और ये माना था ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8, हीमोग्लोबिन शोज मैक्सिमम एफिनिटी विद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और अमोनिया। ये नीट में पूछा गया है, Carbon monoxide. ये नीट में पूछा गया है। तो इट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड को डिस्ट्रॉय करती है, मालूम होना चाहिए। अरे हाँ, इतनी बात समझ में आई क्या तुमको? Yes. तीन चेक पॉइंट आपके पास था।